Hello students. So today's lecture of basic concepts, lecture number 9. So in the last class we had done about the mole concept application on chemical reactions. Remember, we have done two parts of application of mole concepts on chemical reactions. In part 1, we talked about mainly of those questions in which only one reactant amount was given. And in part 2, that is in the last lecture, we discussed about the concept of limiting reactant, and based on limiting reactant, how to calculate the unknown amounts. So we take a special, break from application of mole concept on reactions. We will come back on that. We will have to use, first of all, these terms, concentration terms, to understand something else. Then we will come back to one more part of application of mole concept on reactions, which then will be called as stoichiometry. ठीक है बेटा? तो अभी हमने दो पार्ट्स कवर कर लिए एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट ऑन रिएक्शंस के. थर्ड पार्ट पे हम वापस आएंगे. थर्ड पार्ट पे वापस आने से पहले we have to understand a term called as concentration. In concentration के method or different ways in which concentration can be expressed. The third part, which will be covering of application of mole concept on chemical reactions, will also be involving these terms. Hence, we must know about these terms. तो सबसे पहले concentration word का meaning क्या होता है? Now, what do I mean by the word concentration? Concentration word का meaning हुआ करता है relative amount of one component in solution. क्या मतलब हुआ करता है बेटा? relative amount of one component in solution. Now what do you mean by the word relative amount? Relative is a word which means in relation to something. That means with reference to something. So whenever we talk of the word relative amount, that basically implies that amount of the component fixing particular amount of other substances. Again I repeat, relative amount is amount of a particular component when other amounts are fixed at a particular reference point. तो एक चीज को फिक्स करके दूसरे चीज की एग्जैक्ट अमाउंट क्या होगी, क्योंकि आपने पहले किसी चीज को फिक्स करा, फिक्स करने के बाद दूसरे की अमाउंट की बात कर रहे हो, उसी को बोलते हैं रिलेटिव अमाउंट, और इसी को हम नॉर्मली बोलते हैं क्या? कॉन्सेंट्रेशन. और ये जो हम टर्म यूज करते हैं, ये यूज कहां करते हैं? देख, रिलेटिव अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन इज यूज्ड इन सॉल्यूशन. तो अभी ये वर्ड भी हमें सुना हुआ है जी. व्हाट एग्जैक्टली सॉल्यूशन इज, वो भी बात कर लेते हैं. सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर of two or more components. दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स के होमोजेनस मिक्सचर का नाम होता है जी क्या? सॉल्यूशन. When we mix many things together, yeah, in other words, I can just say mixture. Solution is nothing but a mixture of many components. At least two are there. So mixture होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए. अगर एक ही चीज होगी वो तो प्योर है, फिर वो तो मिक्सचर है ही नहीं. So solution or a mixture is a homogeneous mixture of two or more components, and generally we deal with binary solution. ज्यादातर हमारे क्वेश्चंस में जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? बाइनरी सॉल्यूशन. उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे, टू कंपोनेंट्स. और वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? एक हुआ करता है सोल्यूट, है ना जी. When there are two components in solution, one is called as solute and the other one is called as solvent. तो एक हुआ करता है solute और दूसरा हुआ करता है solvent. Solute, solvent. ठीक है. What exactly solute is and what exactly solvent is? नॉर्मली जो कंपोनेंट लेसर अमाउंट वाला होता है उसको बोलते हैं जी क्या? सोल्यूट. ठीक है. सोल्यूट क्या होता है जी? लेसर अमाउंट कंपोनेंट. और फिर सॉल्वेंट क्या होता है? ग्रेटर अमाउंट कंपोनेंट.
जनरली जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं और होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं तो जिसकी अमाउंट कम होती है कंपोनेंट की उसको सोल्यूट बोलते हैं और जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और अगर बाय चांस इफ बोथ आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट्स देन इट इज अप टू अस, हम जिसको मर्जी सोल्यूट बोल दें और जिसको मर्जी सॉल्वेंट बोल दें। रिपीट, नॉर्मली जो ज्यादा अमाउंट वाला कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट और जो लेसर अमाउंट वाला कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूट। बट इफ देयर अमाउंट्स आर इक्वल देन इट इज अप टू अस, हम जिसे मर्जी सोल्यूट बोल दें और जिसे मर्जी सॉल्वेंट बोल दें। इन जनरल most of the times the solutions which we are dealing in this chapter will be involving water as the solvent। और फिर आपने सुना होगा जी, whenever in any solution water is present as the solvent, such solutions are called as aqueous solutions। कौन से solutions होते हैं, aqueous solutions। ठीक है जी, मैं एक बार क्लैरिफाई कर देता हूं जी, क्या होते हैं जी aqueous solutions। अगर मैं बात करूं aqueous solutions की, अभी aqueous solutions क्या होते हैं, H2O water as solvent। अगर वाटर एज सॉल्वेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे aqueous solutions। और एक और बात बता दें, in fact if solvent not mentioned we assume water as solvent। अगर हमें सॉल्वेंट वाटर दे रखा है फिर तो अच्छी बात है, और अगर वाटर की जगह कोई और सॉल्वेंट दे रखा है देन इट इज आल्सो गुड। बट अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया तो भी हम वाटर को ही क्या मानते हैं, सॉल्वेंट। इसीलिए हम पढ़ा करते हैं जी वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। रिमेंबर, ये लाइन सुनी हुई है ना, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। दैट मीन्स अगर कहीं सॉल्वेंट हमें नहीं दिया गया तो हम क्या मान लेंगे, वाटर। अजम्पशन कर लेंगे कि वाटर ही क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहां तक बात समझ आ रही है जी। सो कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिव अमाउंट को बोलते हैं। रिलेटिव अमाउंट वर्ड का मीनिंग है एक किसी पर्टिकुलर चीज की अमाउंट को फिक्स करके फिर किसी कंपोनेंट की अमाउंट के बारे में डिस्कस करना, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव अमाउंट। और इसी का नाम कंसंट्रेशन होता है। और नॉर्मली ये यूज कहां होती है, सोल्यूशन में। और सोल्यूशन क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। और अगर दो ही कंपोनेंट्स हैं देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, बाइनरी सॉल्यूशन। और उसमें से एक क्या होता है, सोल्यूट, और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। लेसर अमाउंट वाला जनरली क्या होता है, सोल्यूट। ग्रेटर अमाउंट वाला क्या हुआ करता है, सॉल्वेंट। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स द सॉल्वेंट व्हिच वी यूज इज वाटर। इवन इफ द सॉल्वेंट इज नॉट गिवन वी अज्यूम द सॉल्वेंट टू बी वाटर। सो ये बेसिक आइडिया दिया, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, और कॉन्सेंट्रेशन इसी के अंदर हमने डिस्कस करनी है। अब जो भी रिलेटिव अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी कंपोनेंट की, उसको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उन अलग अलग मेथड्स को हमने नाम दे दिया जी, क्या, टर्म्स। सो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन की अलग अलग क्या होती हैं, टर्म्स। हम देखेंगे क्या क्या है जी, विल टॉक ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स। तो यहां तक बेसिक आइडिया क्लियर हो गया बेटा। चलो फिर इस इतने पार्ट को मैं रब कर देता हूं जी। सो व्हाट एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन इज एंड हमने कहां यूज करनी है, ये बात क्लियर होगी जी। हम क्लास 12th में जाके डिस्कस करने वाले हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो डिसाइड करने का तरीका है वो सिर्फ अमाउंट नहीं होता। देयर आर अदर वेज बाय विच वी कुड डिसाइड व्हाट सॉल्यूट इज एंड व्हाट सॉल्वेंट इज। बट अभी इन क्लास 11th इट इज सफिशिएंट टू नो दैट सॉल्यूट विल बी द कंपोनेंट इन लेसर अमाउंट एंड सॉल्वेंट विल बी द कंपोनेंट इन ग्रेटर अमाउंट। ठीक है बेटा, बट इसके और भी तरीके होंगे, वो हम क्लास 12th में करेंगे। ओके लो जी, now let me talk of different concentration terms which is the main thing which we have to discuss today। तो सबसे पहला जो तरीका होता है, सबसे कॉमन तरीका होता है जी, मोलैरिटी। इनफैक्ट ये इतना कॉमन तरीका है कि कॉन्सेंट्रेशन अगर ना बताई जाए कौन सी है तो उसको मोलैरिटी ही मानते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का सबसे कॉमन मेथड है जी क्या, मोलैरिटी। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन लेटर एज कैपिटल एम। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल एम। तो ये जो लेटर्स है वो कैपिटल एम है या स्मॉल एम है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एम। सो कैपिटल एम इज द सिंबल फॉर मोलैरिटी। नाउ आओ जी, फॉर्मूला। व्हाट इज मोलैरिटी का फॉर्मूला।
द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू moles of solute divided by volume of solution in liters. This is the formula of molarity. Very simple. इसमें बेटा हर एक वर्ड जो भी मैंने फॉर्मूला में लिखा है साथ याद करना है, स्किप मत करना. मतलब जैसे मैं कह रहा हूं मोलैरिटी का फॉर्मूला ये बन गया जी. क्या? If you remember, small n we use as the symbol for what? Moles. Moles particularly किसके? Solute के. Solute के moles divided by किसकी volume? Solution की volume. When I talk of solution, that means total volume. अभी पीछे मैंने बताया बेटा what exactly solution is. Solution is a mixture of solute plus solvent. तो अकेला solute solution नहीं होता, अकेला solvent solution नहीं होता, उन दोनों का combination करेंगे तो total बन जाएगा. So total volume ही क्या होती है? solution की volume. So आगे से मैं क्या करूंगा? Either I will write it down as volume solution, तो या फिर मैं कह सकता हूं volume solution या बोल दो वॉल्यूम टोटल, एक ही बात है. सॉल्यूशन वर्ड यूज करना या टोटल वर्ड यूज करना, इट इज वन एंड द सेम थिंग. रिमेंबर? ठीक है जी. रिमेंबर दिस. नाउ कमिंग ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ दिस. नाउ ये तो फॉर्मूला है, अगर हमें वैल्यूज गिवन है इस फॉर्मूला में इंसर्ट करके वी कुड फाइंड द मोलैरिटी. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द वॉल्यूम हैज टू बी इन लीटर्स. If it is already given in milliliters, you will divide it by 1000, so it will be converted into liters, then you will use it. Okay ji. Moving on, definition. I told you earlier, whatever is the definition of any term or any particular, let us say, terminology, then that is also the meaning of that term. Now understand this definition. What will I write down? It is the moles of solute dissolved or present in 1 liter of solution. So what exactly is molarity? It is the moles of solute dissolved or present in 1 liter of solution. किसी भी सॉल्यूशन का व्हेन यू टेक द वॉल्यूम एज 1 लीटर, उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हाउ मच मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट. मतलब मेरा बात समझना जी, मैं क्या कह रहा हूं. मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में मैंने वाटर लिया और उसके अंदर कुछ डिसॉल्व कर दिया, तो वाटर मेरा सॉल्वेंट बन गया. तो उस वाटर के अंदर मैंने जो भी चीज डिसॉल्व करी वो सोल्यूट बन गई. ओके. नाउ if I put some x moles, कितने moles? x moles in 1 liter of total solution. पूरी वॉल्यूम कितनी है? 1 लीटर. पूरी 1 लीटर वॉल्यूम में अगर सोल्यूट के x मोल्स थे तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी? x. तो जितने भी 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर मोल्स डिसॉल्व रहा करते हैं उसी को उसकी क्या बोलते हैं? मोलैरिटी. तो मैंने अपने दिमाग में ऐसा बोल रखा है, मोलैरिटी एक पर्टिकुलर मोल्स का स्पेशल नाम है. सी अंडरस्टैंड दिस. मोलैरिटी इज व्हाट? इट इज व्हाट? मोल्स ऑफ सोल्यूट. तो मोलैरिटी सोल्यूट के मोल्स का ही नया नाम है. कब? जब 1 लीटर सोल्यूशन पता हो. नाउ अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग. मैंने कहा था कॉन्सेंट्रेशन जो वर्ड है उसका मतलब होता है रिलेटिव अमाउंट. मतलब किसी एक चीज को फिक्स करके किसी दूसरे की अमाउंट की बात करना, वही क्या होता है? रिलेटिव अमाउंट. तो यहां मैंने 1 लीटर सोल्यूशन को फिक्स्ड एज रेफरेंस करा दिया. रेफरेंस हो गया. अगर मेरा रेफरेंस 1 लीटर सोल्यूशन है तो उस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होंगे, उन्हीं सोल्यूट के मोल्स का एक नया नाम दे दो. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मोलैरिटी. सो मोलैरिटी बेसिकली सोल्यूट के मोल्स होते हैं, बट अगर सोल्यूशन की वॉल्यूम क्या हो? 1 लीटर. ओके. नाउ लेट्स टॉक ऑफ इट्स यूनिट्स. यूनिट्स की बात करते हैं. मोलैरिटी में ऊपर क्या आया? मोल्स. नीचे क्या आया? लीटर. तो इसके यूनिट्स क्या बन गया जी? इट इज मोल लीटर इनवर्स. क्या बन गया जी? मोल लीटर इनवर्स. या फिर इसको बोल दिया करते हैं मोलर, या फिर इसको रिप्रेजेंट कर दिया करते हैं कैपिटल एम से.
सो ये तीनों तरह से इसके यूनिट्स लिखे आते हैं, मोल्स पर लीटर सबसे कॉमन, या मोलर, या इनफैक्ट कैपिटल एम लिख दो जी, कैपिटल एम इज अगेन शॉर्ट फॉर्म फॉर व्हाट, मोलर। तो लिसन टू मी केयरफुली, कैपिटल एम इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर द टर्म मोलरिटी ऑल्सो, कैपिटल एम इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर द यूनिट्स ऑफ मोलरिटी, दैट इज मोलर ऑल्सो। सो ये हमारी पहली बेसिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में यही आती है। मोलरिटी नाम है इसका, फॉर्मूला ये है, मतलब या डेफिनेशन ये है, और इसके यूनिट्स ये हैं जी। Now let's talk of second concentration term. Let me talk of second concentration term. Second concentration term का नाम है जी molality. Second concentration term is called as molality and it is represented by small m. कैपिटल M का मतलब क्या था, मोलैरिटी, स्मॉल m का मतलब क्या होता है, मोलैलिटी। इसका फॉर्मूला small m is equal to moles of solute, अरे ऊपर भी मोल्स ऑफ सोल्यूट था, नीचे भी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी भी सोल्यूट के मोल्स में न्यूमरेटर ले रहा था और मोलैलिटी भी सोल्यूट के मोल्स को ही न्यूमरेटर ले रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में फर्क है। वॉल्यूम की जगह आ गया वेट, क्या आ गया जी, वेट। और वेट भी किसका, वेट है सॉल्वेंट का, ठीक है जी, और वो भी किस में, किलोग्राम्स में। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी, इसको बोलते हैं जी क्या, मोलैलिटी, ठीक है। दिस बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू सोल्यूट मोल्स डिवाइडेड बाय weight of solvent, that also in kilogram. Now very important understand here, यहां पे ये weight of solvent है, not weight of solution, that is not total weight, total weight नहीं है। यहां पे टोटल वॉल्यूम थी बट यहां पे टोटल वेट नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट वाले पार्ट का वेट है। समझ रहे हो जी बात। नाउ इसी फॉर्मूला के साथ रिलेट करते हैं इसके डेफिनेशन को। इसका डेफिनेशन है जी, इट इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड or present in 1 kilogram of solvent. So if you compare the definition of molarity with molarity, you will notice ये भी सोल्यूट के मोल्स का ही एक स्पेशल नाम है, बट इसमें जो रेफरेंस है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि हम रिलेटिव अमाउंट की बात कर रहे हैं। क्योंकि जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं रिलेटिव हैं, रिलेटिव में देयर हैज टू बी सर्टेन फिक्स्ड रेफरेंस। तो इसका रेफरेंस था 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इसका रेफरेंस है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में व्हाटएवर द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, दे वर गिवन द नेम मोलैरिटी। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में व्हाटएवर द मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट, दे आर गिवन द नेम मोलैलिटी। बहुत छोटा सा फर्क है, इसमें R था, इसमें L है, सो बोलने में हल्का सा डिफरेंस है, मोलैरिटी मोलैलिटी। सो बी केयरफुल, सिंबल में भी थोड़ा सा फर्क है, कैपिटल M स्मॉल m, फॉर्मूला में भी थोड़ा सा फर्क है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बट थोड़ा सा ही सही फर्क है ना, तो चीज तो अलग है, ठीक है जी। नाउ लेट मी टॉक ऑफ इट्स यूनिट्स। अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूं तो इसमें ऊपर क्या आ रहे हैं, मोल्स, नीचे क्या आ रहा है, किलोग्राम। सो इट विल बी, यूनिट्स विल बी मोल केजी इनवर्स, या फिर इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज मोलल, या और छोटा कर दो तो जस्ट उसका सिंबल स्मॉल m। जैसे कैपिटल M को हम मोलैरिटी और उसके यूनिट्स दोनों की शॉर्ट फॉर्म की तरह यूज करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही स्मॉल m को हम मोलैरिटी और उसके यूनिट्स दोनों की शॉर्ट फॉर्म की तरह यूज किया करते हैं जी। सो ये हमारी सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगी जी, क्या, मोलैरिटी। जब भी हमें मोलैरिटी मोलैलिटी निकालनी होगी, विल यूज द फॉर्मूलाज। हमें डेफिनेशंस क्यों लिख रहे हैं, ये तो डायरेक्टली डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं या इनको हम आगे कहीं यूज करेंगे वो बताएंगे, बट फॉर्मूला अपनी अलग जगह पे है, डेफिनेशन अपनी अलग जगह पे है। दोनों चीजों को माइंड के अंदर सेपरेटली लर्न करना है। क्लियर है जी बात।
ओके जी, ये हमारी दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होगी जी. लेट अस टॉक ऑफ थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म. तीसरी की बात करते हैं. लो जी, लेट मी टॉक ऑफ थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म. तीसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म का नाम है जी, लेट अस से मोल फ्रैक्शन. क्या जी? मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है स्मॉल एक्स. मोलैरिटी का सिंबल था कैपिटल एम. मोलैरिटी का सिंबल था स्मॉल एम. मोल फ्रैक्शन का सिंबल है स्मॉल एक्स. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन कैन बी ऑफ solute or solvent. That is, unlike capital M small m, उनकी तरह नहीं है जी. It may represent any component. It may represent any component. ठीक है जी. जो मोल फ्रैक्शन है वो किसी भी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर सकती है. दैट इज अनलाइक एम एंड एम. मैंने ये अनलाइक एम एंड एम इसलिए बोला एज एम स्मॉल एम रिप्रेजेंट्स ओनली सोल्यूट. पीछे बताया था वो दोनों ही मोल्स ऑफ क्या थे? सोल्यूट थे. तो मोलैरिटी पर्टिकुलरली सोल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मोल फ्रैक्शन कैन बी ऑफ एनी कंपोनेंट. ठीक है, जो मोल फ्रैक्शन है वो सोल्यूट की भी हो सकती है, वो सॉल्वेंट की भी हो सकती है. तो हमें बताना पड़ेगा कि मोल फ्रैक्शन किसकी है. मोलैरिटी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो होती ही किसकी है? सोल्यूट की. तो जी, कमिंग टू मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला. मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हुआ करता है x ऑफ, लेट अस से कंपोनेंट A. ऐसे बोल देते हैं जी, x ऑफ A. x of A will be equal to moles of A upon total moles. ठीक है जी. Similarly, x of B will be equal to moles of B upon total moles. ठीक है जी. Where A, B are components of binary solution. अभी पीछे वर्ड बताया था बाइनरी सोल्यूशन. अब कब यूज करते हैं जी? बाइनरी सोल्यूशन का मतलब क्या था? टू कंपोनेंट्स, और उन दोनों कंपोनेंट्स के मैंने नाम रख दिए, क्या? ए एंड बी. तो भैया मोल फ्रैक्शन ए की भी हो सकती है, मोल फ्रैक्शन बी की भी हो सकती है. सो ए की मोल फ्रैक्शन कैसे आएगी? बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स. मोल फ्रैक्शन बी की कैसे आएगी? मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स. तो फिर मैंने क्लैरिफाई करा, जब हम मोल फ्रैक्शन यूज करते हैं तो बताना पड़ता है मोल फ्रैक्शन किसकी है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन सिर्फ सोल्यूट की नहीं होती, वो सोल्यूट की भी हो सकती है, सॉल्वेंट की भी हो सकती है. जबकि मोलैरिटी सिर्फ किसकी होती है? सोल्यूट की. तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती, उनके पैर में कुछ नहीं लिखते. बट मोल फ्रैक्शन के फुट नोट में कुछ लिखा जाता है जो ये क्लैरिफाई करता है कि एग्जैक्टली मोल फ्रैक्शन किसकी है. आ रही है बात समझ? सो बड़ा सिंपल सी बात में बोलूं, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? नाम से क्लियर है, मोल की फ्रैक्शन इज यूज्ड फॉर रेशो. तो इट इज अ रेशो ऑफ मोल्स. बट किस किस का रेशो लेना है? अपने मोल्स अपॉन टोटल मोल्स. जिस चीज की मोल फ्रैक्शन निकालनी है उस चीज के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द कंप्लीट सॉल्यूशन, उस रेशो को बोलते हैं जी क्या? मोल फ्रैक्शन. क्लियर है जी बात? वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आई कैन से दैट it is moles of any component, it is moles of any component present in total 1 mole of mixture. ठीक है जी, हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका रेफरेंस ये था जी, अगर टोटल 1 मोल ऑफ मिक्सचर होते तो मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, यहां पे मैंने क्लैरिफाई कर दिया एनी कंपोनेंट. जैसे हम डेफिनेशन लिख रहे थे मोलैरिटी की, वहां मोल्स ऑफ क्या थे? सोल्यूट थे. लेकिन हमने यहाँ कहा कि ये सोल्यूट के भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट के भी, किसी भी कंपोनेंट के मोल्स, अगर टोटल मोल्स को हम कितना मान लें? 1. अगर आप नोटिस करो, ये जो अभी तक मैंने 3 कंसंट्रेशन टर्म्स करी हैं, इन तीनों की जो मैंने डेफिनेशन लिखी है
उसमें जो रेफरेंस है कुछ ना कुछ 1 लेके आ रहा है। मोलैलिटी में रेफरेंस था 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मोलैलिटी में रेफरेंस था 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन में रेफरेंस है 1 मोल ऑफ मिक्सचर। चलो व्हाटएवर, तो कुछ ना कुछ 1 लेके फिर दूसरे की चीज की बात कर रहे हैं, तो इट इज रिलेटिव अमाउंट व्हिच इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। ठीक है जी। व्हाट अबाउट यूनिट्स? यूनिट्स निकालते हैं जी। ऊपर क्या है? मोल्स, नीचे क्या है? मोल्स। अरे ये तो कैंसिल हो गए जी। सो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट्स, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। नो यूनिट्स, इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस। क्या बोल दिया करते हैं जी? डायमेंशनलेस। नो यूनिट्स या डायमेंशनलेस। मोल फ्रैक्शन के कोई भी यूनिट्स नहीं हुआ करते, इट इज डायमेंशनलेस। अब मोल फ्रैक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो डिफाइन के साथ हम बता देते हैं जी, डेफिनेशन के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला से रिलेटेड, बट हमारे यहाँ पे स्पेस है तो हम यहाँ यूज करते हैं जी। वेरी इंपॉर्टेंट, एक नोट लिखते हैं जी, नोट लिखते हैं जी। मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक नोट, सम of mole fractions, sum of mole fractions of all components, ठीक है, in mixture is always equal to 1। जितने भी कंपोनेंट्स मिक्सचर के अंदर हैं, अगर उनकी सबकी मोल फ्रैक्शंस का टोटल कर दिया जाए, वो हमेशा इक्वल टू 1 आएगा। आई कैन प्रूव इट। इफ बाइनरी सोल्यूशन, अगर मैं मान रहा हूं सोल्यूशन क्या है? बाइनरी है। सो दिस इंप्लाइज, आई कैन से दिस इंप्लाइज XA प्लस XB। देखना जी, प्रूव करता हूं जी। सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस, बाइनरी सोल्यूशन ऑफ A एंड बी, ऐसे मान लिया, अभी बताया था। ए और बी नाम रख लिए, सोल्यूट और सॉल्वेंट बड़े बड़े से वर्ड्स हैं तो सिंपल कर लिया ए एंड बी। एक्स ए प्लस एक्स बी विल बी इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स ए, फॉर्मूला क्या होगा जी? मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स टोटल प्लस मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स टोटल, विच विल बी इक्वल टू, मोल्स टोटल एलसीएम आ गया जी, ऊपर क्या आ गया? मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, which is equal to moles total upon moles total is equal to 1. So this implies XA plus XB is equal to 1. ये मैंने प्रूव कर दिया जी। So ये प्रूफ है जी उसका। दिस इज द प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ बना दिया जी, फॉर्मूला से प्रूव कर दिया क्या कि भाई अगर हम XA प्लस XB को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। ठीक है जी, आ रही है बात समझ? सो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे 2 थे, 2 का सम अगर टर्नरी होगा, इफ टर्नरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन का मतलब होता है 3 कंपोनेंट्स, नाम दे देते हैं जी क्या? A B C। अगर ऐसा होगा, सो दिस इंप्लाइज XA प्लस XB प्लस XC विल बी इक्वल टू 1। हम ये रट्टा नहीं मार रहे कि हमेशा XA प्लस XB 1 होता है ना, जितने कंपोनेंट्स हैं सबका टोटल सम करो तो 1 आएगा। अगर 2 हैं तो 2 का सम, अगर 3 है तो 3 का सम, अगर 4 होते तो 4 का सम। जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सारे कंपोनेंट्स को अगर टोटल कर दिया जाए तो उनकी मोल फ्रैक्शंस का टोटल सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दैट इज इंपॉर्टेंट। लिसन टू मी हियर। ये मैंने NT किसको लिखा था बेटा? टोटल को। ये मैंने NA प्लस NB को ही क्या माना था? N टोटल। वो क्यों? क्योंकि उसमें 2 ही तो चीजें थी। अगर टोटल क्या होगा? A और B का मिक्सचर है तो A के मोल्स B के मोल्स मिला के ही क्या बनेंगे? टोटल मोल्स। सो टोटल मोल्स यहाँ आ गए थे, टोटल मोल्स बाय टोटल मोल्स मान। तो 2 के लिए तो ये प्रूव कर दिया, 3 के लिए भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, बट बता दिया, प्रूफ 2 का कर दिया। अच्छा, 2 के लिए एक और चीज क्लैरिफाई करो यहां से। अगर बाइनरी सोल्यूशन है, दिस इंप्लाइज, यहाँ पे एक नोट का ही पार्ट है जी, if XA known, this implies XB will be equal to 1 minus XA. Now this is very 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 important. ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पता है तो भैया दूसरे की भी आ गई। क्यों? क्योंकि दोनों का टोटल 1 है। अगर सोल्यूशन क्या है? बाइनरी। मतलब अगर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स का सोल्यूशन है
और दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम 1 है और मुझे किसी एक की पता है, मान लो एक्स ही पता है तो एक्स भी निकालना है, तो 1 माइनस क्या कर दूंगा एक्स। सो बाइनरी सोल्यूशन में एक मोल फ्रैक्शन अगर पता है तो दूसरी ऑटोमेटिकली पता है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगी। सो ये मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीज होगी। एक, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, जितने कंपोनेंट्स हैं सबको टोटल कर दो। और दूसरा, अगर बाइनरी सोल्यूशन है तो एक की मोल फ्रैक्शन पता होना इनडायरेक्टली 1 में से उसको माइनस कर दो तो दूसरे की भी इनडायरेक्टली पता है। सो दिस इज अवर थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन, और इसके कोई यूनिट्स नहीं है, दिस इज डायमेंशनलेस। क्लियर है जी बात यहां तक? इज इट ओके टिल हियर? तो ये तीसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ गई जी। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, चौथी करते हैं। लो जी, अब मैं बात करता हूं जी फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म की। चौथी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने ऑलरेडी करी हुई है जी, रिपीट हो रही है जी। क्या? परसेंटेज। ये हम अभी रिसेंट क्लासेस में इसका कॉन्सेप्ट करके आए थे जी, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। सो परसेंटेज भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही है, वो भी एक रिलेटिव अमाउंट ही है। परसेंटेज का फॉर्मूला हम सबको ऑलरेडी आता है जी, परसेंटेज का फॉर्मूला तो ऑलरेडी आता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज? परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ, लेट्स से A will be equal to amount of A upon total amount complete multiplied by 100। ऐसे आता है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसकी अमाउंट को ऊपर रखो, ठीक है, डिवाइड कर दो टोटल अमाउंट से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। इस तरह से आती है जी क्या? परसेंटेज। अगेन परसेंटेज कैन बी ऑफ एनी कंपोनेंट। जो हमने मोलैरिटी करे थे वो पर्टिकुलरली मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रेफर, फ्रैक्शन वो किसी भी कंपोनेंट की हो सकती है, किसी भी कंपोनेंट की हो सकती है, कैन बी ऑफ एनी कंपोनेंट। क्लियर है जी बात? कैन बी ऑफ एनी कंपोनेंट। अब इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी हमें पता है जी, इसका मीनिंग या डेफिनेशन क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ एनी कंपोनेंट, it is amount of any component present in total amount of 100 units. It is amount of any component present in total amount of 100 units. अगर टोटल अमाउंट 100 होती तो किसी भी कंपोनेंट की जितनी भी अमाउंट होती उसको ही हम उसकी क्या बोलते हैं? परसेंटेज। हमने ऑलरेडी बताया था, परसेंटेज दैट मीन्स आउट ऑफ 100। सेंट का मतलब 100 होता है, लेकिन इसमें 100 किसको रेफर कर रहे हैं? टोटल को। आउट ऑफ टोटल 100, किसी भी चीज की अमाउंट अगर टोटल अमाउंट 100 होती तो कितनी होती, तो उसको उसकी क्या बोलते? परसेंटेज। ये हमने अच्छे से डिस्कस ऑलरेडी करा था। क्लियर है जी बात? बट यहाँ पे मैंने एक चीज कहा हुआ है पहले भी कि यूनिट्स क्या है, मैंने यूनिट्स लिख दिया। यूनिट्स क्या है? आर दे यूनिट्स ऑफ मास और आर दे यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम और दे आर मोल्स। डिपेंडिंग अपॉन कैसे मैं यूनिट्स यूज करूंगा हम उसको वैसे परसेंटेज बोल देंगे। जैसे परसेंटेज कैन बी क्या? परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वेट। इन केमिस्ट्री मास और वेट आर इंटरचेंजेबली यूज्ड, उनमें ज्यादा डिफरेंस माना नहीं जाता। परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वेट हमारे लिए एक ही जैसे होते हैं जी। इसको बहुत बार ऐसे लिखा आता है, शॉर्ट में ऐसे लिखा आएगा जी, परसेंटेज W बाय W, ठीक है जी। या फिर हो सकती है जी परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वो लिखा आएगा परसेंटेज V बाय V। या फिर हो सकती है परसेंटेज बाय, ऐसे लिखते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये लिखा आएगा जी परसेंटेज W बाय V। देखो जी, अगर कल्ला मास या कल्ला वेट लिखा है तो यूनिट्स ऑफ मास
फॉर बोथ कंपोनेंट एंड टोटल अमाउंट। ठीक है जी। अगर तो भैया क्या होगा जी, परसेंटेज बाय मास, तो ऊपर भी मास नीचे भी मास, ऊपर भी ग्राम्स नीचे भी ग्राम्स। यूनिट्स ऑफ मास की बात कर रहा हूं, यूनिट्स ऑफ मास कुड बी ग्राम्स फॉर बोथ और किलोग्राम्स फॉर बोथ। ठीक है जी। ज्यादा कॉमन ग्राम्स है जी, कॉमन मतलब ऊपर भी ग्राम्स नीचे भी ग्राम्स, या फिर इट इज ग्राम्स ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन टोटल अमाउंट ऑफ 100 ग्राम्स। अगर सारा कुछ ग्राम्स ग्राम्स में या केजी में बात हो रही है, सो इट इज परसेंटेज बाय मास। क्लियर है जी बात। इसी तरह से अगर परसेंटेज बाय वॉल्यूम होगी तो यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम फॉर बोथ। अगेन मैं बोथ किसके लिए यूज कर रहा हूं, जब मैं बोथ कहता हूं तो कंपोनेंट्स एंड टोटल अमाउंट दोनों की बात करता हूं जी। बोथ का मतलब ये है जी, बोथ मींस कंपोनेंट्स, जो भी कंपोनेंट ऊपर आना है, और टोटल अमाउंट जो भी नीचे आनी है। जो भी कंपोनेंट की अमाउंट की बात करनी है और टोटल अमाउंट जो भी बात करनी है उसके यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम फॉर बोथ। इट कुड बी अगेन ml फॉर बोथ और लीटर्स फॉर बोथ। कुछ भी हो सकता है, तो ml यूज कर लो या लीटर यूज कर लो। ज्यादा कॉमन क्या है, ml कॉमन ये है जी, ये कॉमन है जी। आगे आ जाओ जी। वेट बाय वॉल्यूम की बात करो, वेट बाय वॉल्यूम की बात करूं तो इसका मतलब क्या है जी, यहां इंपॉर्टेंट है जी, और दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट ध्यान से करने वाला। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी का मतलब है जी यूनिट्स ऑफ वेट दैट इज मास फॉर कंपोनेंट एंड यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम फॉर टोटल अमाउंट। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ वेट दैट इज मास फॉर कंपोनेंट, मतलब जो कंपोनेंट का अमाउंट लेना है, जो अमाउंट ऑफ कंपोनेंट लेना है दैट हैज टू बी मास, उसके यूनिट्स क्या होने चाहिए, वेट के, नॉर्मली ग्राम्स। हमने बोला ना जी, वेट ज्यादातर हम कॉमनली किसमें यूज करते हैं, ग्राम्स में। और यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर परसेंटेज बाय मास था तो दोनों मास थे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम था तो दोनों वॉल्यूम्स हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम नाम से क्लियर है, वेट बाय वॉल्यूम, नीचे वाला वॉल्यूम ऊपर वाला वेट, दैट मींस नीचे कौन है, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट की यूनिट्स किसके होंगे, वॉल्यूम के, और वो नॉर्मली होते हैं एमएल में। किसमें होते हैं, एमएल में। सो अंडरस्टैंड हियर, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के अंदर ऊपर जो कंपोनेंट होता है उसके मास के यूनिट्स होते हैं, दैट इज ग्राम्स, और नीचे जो होता है टोटल उसका वॉल्यूम होता है, और दैट इज नॉर्मली यूज्ड इन मिलीलीटर्स। तो ये थोड़ा ध्यान रखना जी, अगर मैं यहाँ ग्राम का किलोग्राम करता हूं तो मिलीलीटर्स का लीटर्स करना पड़ेगा, बट ज्यादातर ऊपर मास ग्राम्स में और नीचे वॉल्यूम एमएल में होती है, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। क्लियर है जी। अब ये हमने बता दिया जी कि जो परसेंटेज है दैट कुड बी ऑफ बाय मास, दैट कुड बी ऑफ बाय वॉल्यूम। नॉर्मली हमने पहले बताया था परसेंटेज कैन बी ऑफ बाय मोल्स आल्सो, अगर बाय मोल्स होती तो ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स। लेकिन जो नया इंपॉर्टेंट सीखा वो ये है जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, क्योंकि उसके ऊपर और नीचे वाले यूनिट्स में डिफरेंस है। और ऊपर क्या है, मास के यूनिट्स ग्राम्स, और नीचे क्या है, वॉल्यूम के यूनिट्स एमएल। तो ये तो बात होगी जी परसेंटेज के अलग अलग यूनिट्स की। ना आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इसके यूनिट्स को। अब परसेंटेज में अगर ऊपर भी मास है नीचे भी मास है तो यूनिट्स कैंसिल, ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है तो भी यूनिट्स कैंसिल। अगर ऊपर मास है और नीचे वॉल्यूम है तो यूनिट्स आएंगे। लेकिन क्लेरिफाई ऐसे करते हैं, ऐसे कहा जाता है जी, नॉर्मली परसेंट साइन इज यूज्ड, नॉट units, units not given importance, units not given importance। परसेंटेज के अंदर हम यूनिट्स को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। ठीक है जी, यूनिट्स को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। अभी एग्जांपल दिखाता हूं, वहां से क्लैरिटी आएगी। तो जी एग्जांपल्स देखो जी, इफ आई टॉक ऑफ एग्जांपल्स वहां से क्लैरिटी आ जाएगी। एग्जांपल्स,
अब अगर मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल में ऐसे दिया हुआ, ध्यान से देखना जी, 20%, ठीक है, 20% इथेनॉल इन aqueous solution। क्या दिया हुआ बेटा? 20% ethanol in aqueous solution। When I say the word aqueous solution, that means the solvent is going to be water, और इसमें सोल्यूट कौन है? इथेनॉल। ओके, इथेनॉल का फॉर्मूला अगर आपने सुना हो बता देता हूं जी, C2H5OH, इसको इथेनॉल बोलते हैं जी, C2H5OH। 20% इसका है, लेकिन बताया नहीं हुआ किसका, आप बताते हैं जी। दिस 20% कुड बी, इट कुड बी 20% बाय मास, ऐसे बोलते हैं 20% W/W, W/W लिख दिया जी। यूनिट्स नहीं मेंशन करते, ऐसे नहीं लिखा कि यूनिट्स हैं कि नहीं है, बस 20%, साथ में वो किस टाइप की परसेंटेज है उसके सिंबल्स लिख दिए। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ जी? इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस मीन्स 20 grams C2H5OH in total 100 grams solution। ठीक ना जी, ये मतलब हुआ जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनी कंपोनेंट इन टोटल अमाउंट ऑफ 100। अब क्योंकि ये वेट बाय वेट था तो सारी अमाउंट्स ग्राम्स में थी, सो 20 grams ऑफ द कंपोनेंट इन टोटल 100 grams ऑफ द सोल्यूशन। तो जो भी टोटल 100 ग्राम्स होगा उसमें जितनी उसकी ग्राम्स में अमाउंट थी वही तो उसकी परसेंटेज बाय मास थी। उल्टा अगर मैं फॉर्मूला में डालूं, इट इज गोइंग टू बी 20/100 into 100 which comes out to be 20। दोबारा अगर इस चीजों को मैं इस फॉर्मूला में डालूं, अमाउंट कितनी है C2H5OH की? 20 ग्राम्स। टोटल अमाउंट कितनी है? 100 ग्राम्स। 100 कैंसल्स विद 100, परसेंटेज कम्स आउट टू बी 20। आराम से लास्ट पार्ट समझ लो जी, जितनी टोटल 100 ग्राम्स में उस इथेनॉल की अमाउंट इन ग्राम्स होगी वही उसकी परसेंटेज बाय मास होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दिस इंप्लाइज वेट ऑफ वाटर बता सकते हो कितना हुआ? हाउ मच इज दैट? 100 minus 20 इज इक्वल टू 80 ग्राम्स। सही हो गया जी, 100 minus 20 इज इक्वल टू व्हाट? 80 ग्राम्स। सही है। अच्छा अगर यही यही 20% W/V होता है ना जी, मैंने चेंज कर दिया जी। अगर तो 20% बाय मास होता फिर तो ये मतलब था, अगर 20% W/V होता, अगर 20% W/V होता तो इसका मतलब क्या होता? दिस मीन्स, इसका मतलब होता वेट of C2H5OH is equal to 20 grams in total 100 ml। ये सही हो जाता। वो क्यों? जैसे ही मैंने W/V कहा, ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट वाला केस आ गया। इसमें जो तो कंपोनेंट होता है उसका तो क्या होता है? मास। C2H5OH का तो मास हो गया इन ग्राम्स, लेकिन जो टोटल होता है वो वॉल्यूम होता है। तो टोटल क्या हो गया जी? 100 ml। ये समझ आ रहा है जी मतलब? तो अगर 20% वेट बाय वॉल्यूम होता तो उसका मीनिंग ये निकल के आता। अच्छा फिर इसमें वाटर कितना होता है जी? हम अगर बोलते हैं वेट ऑफ वाटर, ठीक है जी, अगर हम इसको ऐसे बोल देते 100 minus 20, तो बेटा ये गलत होता जी, दिस वुड हैव बीन रॉन्ग। वो क्यों गलत होता? क्यों? अरे 100 तो ml था, 20 तो ग्राम्स था। तो भैया एडिशन सब्ट्रैक्शन सिमिलर यूनिट्स की होती है, तो यहां पे हम अमाउंट ऑफ वाटर को ऐसे निकाल ना पाते, क्योंकि ये तो ml है, दिस वन इज ml एंड दिस वन इज ग्राम्स, और फिर ml में से ग्राम्स को सब्ट्रैक्ट कर पाना पॉसिबल ना होता। दिस इज रॉन्ग, ऐसे हम इसका वेट ऑफ वाटर निकाल ना पाते। हाँ उसमें निकाल लिया, क्योंकि 100 भी ग्राम्स था, 20 भी ग्राम्स था, तो 80 भी क्या आ गया था? ग्राम्स। तो यहां पे वाटर की अमाउंट के बारे में कमेंट कर पाना पॉसिबल था, यहां पे वाटर की अमाउंट के बारे में डायरेक्टली कमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं था। खैर ये हमारी चौथी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगी विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, कॉल्ड एज परसेंटेज। और अगर हमें परसेंटेज कुछ गिवन हो, उसका आपने क्या मीनिंग यूज करना है ये भी आपको आना चाहिए। ऐसे मीनिंग यूज करना इसका, ऐसे मीनिंग यूज करना, इसको हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे, मीनिंग्स को करेंगे आगे, दोबारा देखेंगे। अभी के लिए हमारी ये चौथी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगी जी।
लेट मी टॉक ऑफ फिफ्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है जी, अब मैं बात करता हूं जी पांचवी कॉन्सेंट्रेशन टर्म की। अगर मैं फिफ्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करूं तो वो काफी हद तक परसेंटेज जैसी ही है। ठीक है जी, लो जी बात करते हैं जी फिफ्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म की। उसका नाम है ppm, दैट इज कॉल्ड एज पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है बेटा, मिलियन की वैल्यू कितनी होती है? मिलियन होता है जी 10⁶। जैसे पर सेंट, सेंट का मतलब होता है 100, मिलियन का मतलब होता है 10⁶। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगेन पीपीएम जो होता है ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का हो सकता है। नॉर्मली सल्यूट की बात करते हैं, नॉर्मली सल्यूट, लेकिन ये परसेंटेज या मोल फ्रैक्शन की तरह किसी भी कंपोनेंट का हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या हुआ इसका? ppm ऑफ A will be equal to amount of A upon total amount multiplied by 10⁶. So if you notice this formula, it is more or less परसेंटेज वाला फॉर्मूला ही है। सिर्फ फर्क क्या है, परसेंटेज में यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 का था, पीपीएम में यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10⁶ का है। समझ गए जी बात? लास्ट बार, ppm of any component A is equal to amount of that component A upon total amount into 10⁶। तो डेफिनेशन भी वैसी होगी बिल्कुल। It is amount of any component, it is amount of any component present in total amount of 10⁶ units। ठीक है जी, इट इज टोटल अमाउंट ऑफ व्हाट? 10⁶ यूनिट्स। बस मेरे को फिर बार बार क्लैरिफाई कर रहा हूं जी, परसेंटेज में यहाँ पे 100 था, पीपीएम में यहाँ पे 10⁶ है, तो बाकी मोर लेस एक जैसी चीजें हैं। जैसे उसमें भी मैंने अमाउंट यूज किया था, इसमें मैंने क्या यूज किया? अमाउंट, और इस अमाउंट के यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं। जैसे परसेंटेज में कहा था, दिस पीपीएम कुड बी इन टर्म्स ऑफ मासेस, या इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, या इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है ना जी? ppm can be like percentage, ठीक है जी, in terms of masses, या फिर in terms of volumes, या फिर in terms of weight by volumes। जो मीनिंग हमारा परसेंटेज में था वही है जी। अगर इन टर्म्स ऑफ मासेस है तो ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, अगर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है तो ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, अगर इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वॉल्यूम है तो ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम। अब अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, अगेन लाइक इन परसेंटेज, ठीक है जी, यूनिट्स नॉर्मली नॉट मेंशन्ड। ठीक है, लाइक इन परसेंटेज यूनिट्स नॉर्मली नॉट मेंशन्ड। ठीक है, परसेंटेज की तरह यूनिट्स नॉर्मली मेंशन ही नहीं किए होते, लोड ही नहीं पड़ती। क्यों? मास बाय मास कट गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कट गया, बट इसका इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वॉल्यूम का समटाइम्स, ठीक है जी, इफ पीपीएम इज इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है जी, फिर यूनिट्स मेंशन्ड होते हैं जी। देन यूनिट्स मेंशन्ड एज, देन यूनिट्स मेंशन्ड एज कैसे? फिर दो तरह के यूनिट्स लिखे होते हैं जी, या लिखा होता है मिलीग्राम पर लीटर, या लिखा होता है माइक्रोग्राम पर एमएल। इन दोनों में से कोई एक यूनिट लिखे आएंगे जी। कभी कभी अगर वो वेट बाय वॉल्यूम वाला पीपीएम है, मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है जी, मिलीग्राम पर लीटर या माइक्रोग्राम पर एमएल,
तो अगर ऐसा लिखा है या ऐसा लिखा है तो इनडायरेक्टली उसका मतलब क्या देवन है जी, पीपीएम इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वॉल्यूम्स। ठीक है जी। अगेन इसका एक एग्जांपल समझो। एग्जांपल अगर दिया हुआ है लेट अस से 10 ppm SO2, चलो 10 ppm ऐसे बोलते हैं जी, 10 ppm फ्लोराइड आयंस इन वाटर, ऐसे लिखा हुआ है। अगर 10 ppm फ्लोराइड आयंस इन वाटर लिखा है तो इसका मीनिंग क्या निकालूं? दिस मीन्स ठीक है बेटा, जब भी हमें ये बताया ना जाए पीपी इन टर्म्स ऑफ मास है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है या इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वॉल्यूम है, तो हमारी मर्जी होती है हम जो भी यूज कर लें। फिर नॉर्मली यही अज्यूम्ड लेट्स से डिफॉल्ट केस होता है। मैं डिफॉल्ट केस उसको बोला करता हूं जब कुछ मेंशन ना हो, हमने जो अज्यूम करना है उसको डिफॉल्ट केस बोलते हैं। जैसे इस केस में हमने नहीं गिवन तो हमने इसको अज्यूम कर लिया जी, अज्यूम इन टर्म्स ऑफ मासेस। अगर वो है तो फिर ये डेफिनेशन, इट इज अमाउंट ऑफ एनी कंपोनेंट। कंपोनेंट कौन सा है? फ्लोराइड आयंस। उसकी अमाउंट क्या है? 10। जितना उसका पीपीएम है वही उसकी अमाउंट है, लेकिन 10 इन टर्म्स ऑफ मासेस। दिस मींस 10 ग्राम्स F माइनस आयंस इन कितना जी? टोटल अमाउंट ऑफ 10 द पावर 6 ग्राम्स टोटल सोल्यूशन। ठीक है जी, 10 द पावर 6 ग्राम्स टोटल सोल्यूशन। अच्छा मुझे बात बता सकते हो यहाँ पे, दिस इंप्लाइज वेट ऑफ वाटर कितना हो गया जी? दिस इज इक्वल टू 10 द पावर 6 माइनस 10, ये हुआ जी। ये क्या था? टोटल माइनस क्या हो गया? F माइनस, बचा हुआ क्या आ गया? वाटर। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, दिस इंप्लाइज वेट ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 द पावर 6 ग्राम्स। दैट मीन्स यहां से क्लैरिटी आई, in case of ppm, in case of ppm comma, in case of ppm comma, what has happened is, in case of ppm total weight is approximately equal to weight of solvent, as weight of other components negligible, as weight of other components negligible। इनफैक्ट यहां से मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं पीपीएम यूज ही कहां करते हैं। पीपीएम यूज्ड मेनली इन वेरी dilute solutions, that is where solute is present in traces, very less amount। ठीक है जी, जहां पे सोल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वहीं पे हम पीपीएम को यूज करते हैं। तो पीपीएम रेयरली यूज होता है कहां पे? जहां वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस हो। अगर सोल्यूट बहुत कम होगा तो मेन कंपोनेंट सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि हम कह सकते हैं कि टोटल वेट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट है। देख लो 10 द पावर 6 में से 10 ना के बराबर है तो इसको निगलेक्ट किया, तो दिस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 द पावर 6 ही रह गया। तो टोटल 10 द पावर 6 था, वही वाटर 10 द पावर 6 आ गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया, नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट अप्रोक्स इक्वल। सो ये होगी जी हमारी फिफ्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, नाम था इसका पीपीएम। एग्जैक्टली ऐसी डिट्टो ऐसी एक और टर्म होती है जिसका नाम होता है पीपीबी। पीपीबी की फुल फॉर्म क्या होगी बताओ? पीपीबी विल बी कॉल्ड एज पार्ट्स पर बिलियन। सब कुछ सेम है, जो यहां लिखा है हर चीज सेम है, बस मिलियन की जगह अगर बिलियन आएगा तो 10 द पावर 6 की जगह 10 द पावर 9 आएगा। मैं उसको अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म बना के फिर एक नोट लिख दूंगा जी। ठीक है जी, लो जी ये नोट डाउन कर लिया होगा जी। लेट मी राइट डाउन सिक्स्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म पीपीबी। लो जी लिख लेते हैं जी क्या एक बार, सिक्स्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म पीपीबी। फुल फॉर्म क्या है? पार्ट्स पर बिलियन। और बिलियन की वैल्यू होती है जी क्या? 10 द पावर
9. तो ppb of any component A will be equal to amount of A upon total amount multiplied by 10 the power 9. ये हो गया जी फॉर्मूला ऑफ पीपीबी. ठीक है, बस मिलियन में 10 the power 6 था, बिलियन में 10 the power 9 है. Nothing else. तो इसकी डेफिनेशन भी वैसी होगी. It is amount of any component. It is amount of any component present in total amount of 10 the power 9 units. इसके यूनिट्स नॉर्मली नोट रिक्वायर्ड. हम पीपीबी ही लिखा जाता है, यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं होती. सो पीपीबी इज क्वाइट सिमिलर टू पीपीएम. ठीक है, दोनों ही वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस में यूज होते हैं जी. बोथ ppm ppb used in measuring क्या, एक let's say air water pollutants. अगर आपने कभी आजकल न्यूज के एंड में पॉल्यूशन वॉच आता है तो उसमें बताया जाता है कि आज एयर के अंदर SO2 का लेवल इतने ppm या इतने ppb था. दैट मींस ppm या ppb कहां प्रैक्टिकली यूज होते हैं, एयर या वाटर में कितने पॉल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर मेजरिंग हार्डनेस ऑफ वाटर. वाटर की हार्डनेस का मतलब होता है जी, हार्डनेस ऑफ वाटर इज नथिंग बट ppm ऑफ CaCO3. ये हम आगे समझाएंगे जी क्या होता है. ठीक है, तो इन दोनों जगह पे ppm या ppb यूज करे जाते हैं जी. ये हमारी 6th कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगी जी. 6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के हमने फॉर्मूला, नाम, फॉर्मूला, डेफिनेशंस और इंपॉर्टेंस ऑफ देयर यूनिट्स ये डिस्कस कर ली. एक बार 6 के नाम रिपीट करें. सबसे पहले वाली जो सबसे ज्यादा यूज होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोलैरिटी, कैपिटल M. सेकंड वाज मोलैलिटी, स्मॉल m. थर्ड वाज मोल फ्रैक्शन, स्मॉल x. फोर्थ वाज परसेंटेज. फिफ्थ ppm एंड सिक्स्थ अभी लिखी है जी क्या, ppb. ये 6 हमने कॉमन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जी, ये हमने सीख ली जी. एक तो और बची हैं लेकिन वो अभी चैप्टर के एंड पार्ट में आएंगे जी. अभी के लिए जो करनी थी वो ये 6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी जी. क्या, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, ppm, ppb. तो जी मैं अब 2-3 क्वेश्चंस कराता हूं जिनके, ताकि हाथ से निकल जाए, हम इनके फॉर्मूलाज लगाने सीख जाएं जी. ठीक है जी, बहुत इजी है बेटा. लेट अस जस्ट राइट डाउन 2-3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. ओके बेटा, ये मैंने 3 सिंपल से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जी, बेस्ड ऑन हमने अभी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिफाइन करी है. इनफैक्ट ये पहले 3 क्वेश्चन पहली 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड है, इजी है. एक बार जरा फॉर्मूलाज को अपने हाथ से लगा के देखते हैं बेटा. इट विल बी वेरी इजी, देन वी विल बिकम कॉन्फिडेंट इन फाइंडिंग कॉन्सेंट्रेशंस. चलो देखते हैं जी. पहले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, मोलैरिटी. एज आई ऑलवेज से, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बड़े आराम से, and if possible think in terms of symbols and then think of formula and apply them. सबसे पहले हमें गिवन क्या है जी, ये गिवन है जी 10 ग्राम्स NaOH in 200 ml of solution. यानी मेरे को गिवन क्या क्या है, मेरे को वेट ऑफ NaOH गिवन है जी 10 ग्राम्स, और मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कितना, 200 ml. ओके, ये दोनों चीजें गिवन है जी. पूछा क्या है, मोलैरिटी. मोलैरिटी का सिंबल क्या था बेटा, कैपिटल F. फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी लीटर्स में. हर चीज इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, सो बी केयरफुल. अब लो जी वैल्यूज पुट करें. अच्छा,
यहाँ क्लैरिफाई करते हैं जी, हमें इस पूरे सोल्यूशन में बताया नहीं गया सॉल्वेंट कौन है, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जैसे हम कहा करते हैं NaOH सोल्यूट होगा, वाटर सॉल्वेंट होगा, ठीक है जी, अज्यूम्ड। गिवन नहीं है, गिवन होता तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमने वाटर मान लिया, खैर जरूरत नहीं पड़ी वाटर की। फॉर्मूला में डालते हैं जी, लो जी, मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब मोल्स ऑफ NaOH, इट विल बी वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH। इस तरह से मोल्स आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली गिवन थी 200 डिवाइडेड बाय 1000। ये मैंने ऐसे क्यों करा बेटा, क्योंकि वॉल्यूम मुझे गिवन ml में थी और चाहिए मुझे लीटर्स में थी। Now putting the values I get, this implies, मुझे बताओ weight of NaOH कितना गिवन है 10 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH याद क्या हुआ है 40 ग्राम्स, इसको मैं उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूं 1000 डिवाइडेड बाय 200, ऐसे कर दिया जी। जो डिवीजन थी वो उल्टा होकर मल्टीप्लाई होगी, ऐसे किया करते हैं जी फ्रैक्शंस के अंदर। अब 10 बाय 40 इंटू 1000 बाय 200, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके अब आंसर आ गया जी आपके पास। तो जी ये जीरो कटा इस जीरो से, ये जीरो इस जीरो से, तो ये क्या आ गया जी 10 बाय 8, कितना आ गया बेटा 10 बाय 8। नाउ 2 पे कट गया जी, इट इज 5 बाय 4, कितना आ गया बेटा 5 बाय 4 विच इज इक्वल टू 1.25 मोलर। यूनिट्स के बिना लिखना मार्क्स कटवा सकता है, तो यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है। 1.25 मोल लीटर इनवर्स, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। कैपिटल M वाज द शॉर्ट फॉर्म फॉर द यूनिट्स आल्सो, कैपिटल M इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर मोलैरिटी आल्सो, कैपिटल M इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर द यूनिट्स आल्सो। चलेगा जी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जी, इजी था जी। लेट अस टॉक ऑफ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लो जी, क्या पूछिए इस बार मोलैलिटी, और गिवन क्या है ये सारा, बताओ जी गिवन क्या है। इस बार गिवन है जी वेट ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, सबसे पहले तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, CH3COOH, इसका मॉलिक्यूलर वेट याद किया हुआ कितना होता है 60। ओके, दैट मींस हमें गिवन है जी वेट ऑफ CH3COOH गिवन टू बी 20 ग्राम्स। ओके, और क्या गिवन है टोटल मास, टोटल मास गिवन है जी, टोटल कितना गिवन है जी 100 ग्राम्स। ओके, निकालना कहा गया जी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट, लेकिन किसका सॉल्वेंट का, वो भी किस में केजी में। ये फॉर्मूला जी, हर चीज बड़े आराम से याद करके फिर अप्लाई करनी है, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, लेट मी पुट द वैल्यूज। पहली इंपॉर्टेंट बात, ऊपर तो सोल्यूट के मोल्स इससे आ जाएंगे, ठीक है जी। CH3COOH सोल्यूट है जी। अब अगेन कुछ गिवन नहीं है, तो वाटर को हमने क्या मान लिया सॉल्वेंट, और मेरे को नीचे किसका वेट चाहिए सॉल्वेंट यानी वाटर का कि टोटल का, सॉल्वेंट यानी वाटर का। तो यहां पे ये भी देखो, दिस इंप्लाइज वेट ऑफ सॉल्वेंट will be equal to 100 minus 20 is equal to 80 grams. Very important. यहाँ तो मुझे टोटल सोल्यूशन की वॉल्यूम ही डालनी थी, लेकिन यहाँ मास टोटल गिवन था, लेकिन मेरे को डालना फॉर्मूला में किसका है सॉल्वेंट का, तो पहले वो पता कर लिया जी। 100 minus 20 is equal to 80 grams. Now let's put the values. Moles of solute, moles कैसे आते होते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो इट विल बी वेट CH3COOH अपॉन मॉलिक्यूलर वेट CH3COOH डिवाइडेड बाय, हाँ जी, नीचे वेट किसका आना था सॉल्वेंट का, तो 100 आएगा कि 80 आएगा 80, लेकिन केजी में चाहिए, सो 80 डिवाइडेड बाय 1000। सो कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। डूइंग द कैलकुलेशन आई गेट वेट ऑफ CH3COOH इज गिवन टू बी 20, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH3COOH वी ऑलरेडी नो इज 60, इसको अगेन उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दें 1000 डिवाइड बाय 80। ओके, काट लेते हैं जी, ये तो मेरा पूरे कर गया 24 जा 80, यहां से आ गया जी 4। ओके, एक जीरो इससे कट गई जी, ये भी सही हो गया जी। सो इट विल बी 100, चलो अब काट ही लेते हैं जी, लेट्स कट इट, पूरा काट लेते हैं। वैसे बना क्या था जी 100 अपॉन 6 into 4 24। सो सॉल्विंग आई गेट व्हाट, अगर मैं इसको कटिंग करूं आगे फर्दर, यहाँ गया जी 50, यहाँ गया जी क्या 3, ठीक है। उसके बाद ये आ गया 2, ये आ गया 25, सो इट विल कम आउट टू बी 25 by 6, कितना आ गया 25 by 6।
6 4 जा 24, ठीक है जी, 0.6 फिर आ गया जी 4 4 6 6 जा 36, 4.16 m, दैट मीन्स और 4.16 मोल kg इनवर्स यूनिट्स के साथ मेंशन करना है। क्लियर है जी बात? 4.16 मोलल, दैट इज द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी इन सेकंड क्वेश्चन। सो डायरेक्टली फॉर्मूलाज यूज कर रहा हूं बेटा, बस ध्यान से चीजों को डालना है जी, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, अदरवाइज इट्स वेरी वेरी सिंपल। लास्ट पार्ट ट्राई करते हैं जी, लेट्स ट्राई द लास्ट पार्ट। फाइंड मोल फ्रैक्शन। ओके, गिवन क्या है जी? ये सारा। तो पहले तो जो गिवन है लिखो जी, वेट ऑफ यूरिया। अरे यूरिया का फॉर्मूला याद क्या हुआ है? NH2CO NH2, और इसका मॉलिक्यूलर वेट याद क्या हुआ है? कितना होता है? 60। ओके, बाय चांस एसिडिक एसिड और यूरिया दोनों का मॉलिक्यूलर मास 60 है, ये हमने ऑलरेडी याद किया हुआ है। क्लियर है? और वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको पता ही है जी, कितना होता है? 18। चलो अब हमें ये जो गिवन है जी, हमें एक गिवन है वेट ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 30 ग्राम्स, एक गिवन है वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 36 ग्राम्स, ये गिवन है। ओके, तो पूछा क्या जी? मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट्स। बारी बारी निकालते हैं जी। पहले निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स टोटल। फॉर्मूला यही था जी। सो जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ओके, दैट मींस मोल्स ऑफ यूरिया कैसे आएंगे जी? वेट ऑफ यूरिया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। पहली बात तो ये आएंगे जी मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। आ रही है बात समझ? टोटल मोल्स को पहले मैंने खोला, एक्सपैंड करा, टोटल मोल्स दोनों से मिलके आएंगे, मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ओके, नाउ किसी भी चीज का अगर वेट पता हो तो मोल्स आ सकते हैं, मैं यहां से निकाल देता हूं। मोल्स यूरिया इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट विच विल बी इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 60। 30 उसका मास था, 60 उसका मॉलिक्यूलर मास था, तो इस तरह से यहां से मोल्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 18। ये आएगी जी वैल्यूज। तो अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं, मोल्स ऑफ यूरिया की वैल्यू ये रही, मोल्स ऑफ वाटर की वैल्यू ये रही, मैंने डायरेक्टली अलग से निकाल के डाल दी फॉर्मूला में लिखने की बजाय। सो दिस इंप्लाइज x यूरिया विल बी इक्वल टू 30 by 60 is half अपॉन हाफ प्लस 2। करना जी यहां तक। ये जो 30 by 60 आया था, ये कितना आ गया था? हाफ। ठीक है, और ये जो 36 by 18 आया था, ये कितना आ गया था? 2। तो मोल्स ऑफ यूरिया हाफ, हाफ ऊपर भी नीचे भी, मोल्स ऑफ वाटर 2, ये नीचे डाल दिए। तो ये क्या बन गया जी? ऊपर आ गया 1/2, नीचे एलसीएम लिया, सो इट विल बी 1 प्लस 4 अपॉन 2। जब 2 2 जा 4, एलसीएम ले लिया जी, तो फिर ये 2 कैंसिल्स, तो इट इज 1/5 विच इज इक्वल टू 0.2। 1/5 कितना होता है बेटा? 0.2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आ गई। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, अरे डायरेक्ट निकाल सकते हैं जी। वो कैसे? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। बताया था सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स है, बाइनरी सोल्यूशन है, तो अगर एक की मोल फ्रैक्शन पता, दूसरे की कैसे आएगी? 1 में से सब्ट्रैक्ट करके। सो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.2। हाउ मच इज दैट? 0.8। लो जी, इजी थे जी तीनों क्वेश्चन। डायरेक्ट डायरेक्ट सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है, बस एक बार करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से किया करते हैं। ठीक है जी, ये तीनों क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व किए हुए हैं जी, जस्ट गो थ्रू देम इजीली। इस तरह से हम क्या निकाला करते हैं? कॉन्सेंट्रेशंस। वैल्यूज गिवन होती हैं, जैसे जैसे फॉर्मूला में रिक्वायरमेंट होती है उसमें कन्वर्ट करते हैं, पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। और खास बात होती है यूनिट्स की, सो बी केयरफुल अबाउट यूनिट्स, मोलैरिटी के। और मोल फ्रैक्शन तो यूनिट्स थे ही नहीं, डायमेंशनलेस, तो उसको ऐसे लिख दिया जी। तो हमारे तीन इंपॉर्टेंट सिंपल से क्वेश्चन हो गए जी। लो जी, बहुत इजी थे जी ये क्वेश्चंस। अब एक छोटा सा नोट लिख पाता हूं जी, आई मेक यू राइट अ नोट। मुझे अगर मैं एक नोट लिखूं जी, एनी concentration term having volume involved, ठीक है जी, will change in its value slightly
by changing temperature. By changing temperature. This means such terms depend on temperature. Examples are molarity, ठीक है जी, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इन सबके फॉर्मूलाज में टेम्परेचर आता है, सॉरी वॉल्यूम आता है। जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम इन्वॉल्व है, हमें पता है टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता है। नॉर्मली व्हेन वी हीट एनीथिंग इट एक्सपैंड्स, इसकी वॉल्यूम बड़ी हो जाती है, तो वॉल्यूम चेंज तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू चेंज, अगर वो इन तीनों टर्म्स में लिखी हुई है। बट concentration terms not involving volume are independent of temperature. ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी हैं जी, बता देते हैं जी कौन कौन सी हैं। जो ये नहीं है, एक मोलैलिटी, दूसरी मोल फ्रैक्शन, तीसरी परसेंटेज बाय मास, ठीक है जी। ये तीनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हैं। टेम्परेचर चेंज करने से इन पे कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है जी। टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज होती थी, वॉल्यूम जिसमें होगी वो चेंज होंगी, जिसमें वॉल्यूम है ही नहीं वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी। तो ये हमने बेसिक आइडिया दिया अबाउट 6 कंसंट्रेशन टर्म्स, कैसे कैसे हमने उनके फॉर्मूलाज को यूज करके कैलकुलेट करनी है जी कॉन्सेंट्रेशंस। तो अगेन आज हम इतना करते हैं बेटा, लेट्स टेक अ पॉज हियर, फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। कॉन्सेंट्रेशंस का भी और पार्ट हमारा अभी बाकी है जी। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू हाउ टू कन्वर्ट वन कंसंट्रेशन टर्म टू अनदर। एक भी कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी दे रखी है, फिर मोलैरिटी पूछ ली, मोलैलिटी दे रखी है, मोल फ्रैक्शन पूछ ली, कैसे एक कंसंट्रेशन को दूसरी कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है, दैट इज वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये जो कंसंट्रेशन वाला टॉपिक है बेटा, ये कंपटीशन एग्जाम्स का बहुत फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करना साथ साथ।